Okay. So the sentence would be, I had been working since morning when the boss, okay, what would be the next part? When the boss, suggested me to take जब break. कोई कुछ करने Yeah, को कहता है तो उसे ask कहते हैं. Asked to take a break. Take a break. I had been working since morning when the boss asked me to take a break. Me भी लगा दो because me है वहां पर. Okay. This is the final sentence of past perfect continuous with past simple. If you haven't seen the recording, I would like to tell you a special note. You should remember this, that past continuous, past perfect, and past perfect continuous never come separately. They don't make single sentence generally, right? If somebody says, I was playing, okay, but you need to complete the sentence when, where, you need to tell something to complete the meaning of the sentence. That's why every time when you make another past without past simple, you feel the sentence is wrong, half meaning नहीं है पूरा. उस पूरे मीनिंग को देने के लिए या तो आपने टाइम लगाना पड़ेगा, कोई टाइम वर्ड लगाना पड़ेगा, या फिर आपको कोई सिचुएशन लगानी पड़ेगी पास्ट की. वो पास्ट की दूसरी सिचुएशन इज ओनली द पास्ट सिंपल टेंस. व्हेन यू रियलाइज द सेंटेंसेस आफ्टर रीडिंग ट्वाइस, यू विल अंडरस्टैंड कि इस तरीके के सेंटेंसेस ही हैं जो कि पास्ट सिंपल को बाकी पास्ट कंप्लीट करने का हेल्प करने का, लाइक इट हेल्प्स देम टू कंप्लीट देयर मीनिंग. ये है टोटल पास्ट टेंस का यूसेज, right? If you say what is the use of past perfect, so we generally say the use of past perfect is when any action finished long back somewhere in future, somewhere in past. That means very old past is past perfect. But generally, past perfect never comes with single past. Is it comes with another past sentence जो उसका meaning complete करता है. वो another past tense ही पास्ट सिंपल है. सिमिलरली कोई एक्शन एक पर्टिकुलर समय से हो रहा था, उस समय को, उस टाइम को लगाने के लिए वी यूज सिंस एंड फॉर, राइट? सिंस इज यूज्ड, मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया है, सिंस इज यूज्ड फॉर एग्जैक्ट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, and for is used for kind of period of time, like days, like years, like minutes, like seconds, like weeks, many things ऐसे जो जिनमें ड्यूरेशन पता चलता है, 1 hours, 2 hours, 3 days, like this. When you have time with days, hours, minutes, seconds, years, weeks, centuries, decades, like this. कितना भी हो सकता है ना? तो जब आपका काम उस पर्टिकुलर समय से चल रहा था तो उसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. वो भी सिंगल नहीं आएगा. अगर आप बोलोगे आई हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, देन आई वुड लुक फॉर अनदर पार्ट. हाँ, ओके, देन व्हाट? अगर आप सुबह से पढ़ रहे थे, अच्छा, वेरी नाइस, और फिर क्या हुआ? आई हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग when my mother called me for lunch, or for breakfast, or for snacks, for evening dinner, anything, right? उसके आगे कुछ भी लगाएंगे to complete its meaning. When you complete the meaning, then आपका sentence has a value, otherwise it is incomplete, right? Clear? Similarly, in English, we have future tenses. In future tenses also, we have 4 future tense, like present, like past. Okay? So let us understand future tense now.
And here in future tenses, generally what we do, we just learn future simple, which is the main future, which is the realistic future. Okay. And future continuous, again, which is continuous, जो काम चल रहा होगा, means a guess or a prediction. ऐसी चीजें जो हमने बस ऐसे ही कह दी हैं फ्यूचर के लिए अनुमान लगाकर, गैस करके, राइट? लेकिन उनका अपना कोई, दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ रियलिस्टिक नेचर, बस बोल दिया है, रियलिस्टिक नेचर नहीं है. लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को भी यू कांट मेक अ सिंगल सेंटेंस. आपने क्या करना पड़ेगा? सिंगल सेंटेंस आप उसकी तरह यूज नहीं कर पाएंगे. आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके साथ में फ्यूचर सिंपल लगाना होगा. समटाइम्स सम एक्शंस विल हैव कंप्लीटेड इन फ्यूचर, हो जाएंगे, खत्म हो चुके होंगे, ऐसे कुछ प्रिडिक्शंस होते हैं, उनमें हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. रिमेंबर, future perfect tense is also incomplete without a future simple tense. That means practically you need a future sentence to complete the remaining future tenses. You need a future simple sentence. एक example आपको देती हूँ. उसके पहले let us understand the structure of all future tenses. Right? तो combination के साथ हम जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन हमको पहले नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए. लेट अस अंडरस्टैंड फ्यूचर सिंपल स्ट्रक्चर. व्हाट इज फ्यूचर सिंपल? फ्यूचर सिंपल इज सब्जेक्ट, देन वी हैव विल, then we have we can use will only, by the way. फ्यूचर इंग्लिश में, अभी मॉडर्न इंग्लिश में तो will ही यूज हो जाता है. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज shall and shall with I and we, right? यहाँ पे क्या होगा? will plus verb first form plus object. What kind of sentences are used with it? The actions which are called the predictions for future, predictions और guess actions generally. वो एक्शन जो फ्यूचर में होंगे, काइंड ऑफ प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी, बस कह दिया है कि होंगे, गारंटी कुछ नहीं होती है. लेकिन फ्यूचर सिंपल इज मोर कॉन्क्रीट देन अदर फ्यूचर, राइट? वो ज्यादा कॉन्क्रीट होता है. नियरेस्ट फ्यूचर इज फ्यूचर सिंपल, राइट? लेट्स गो नेक्स्ट. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. In future continuous, we have a subject. At the place of helping verb, we have will be. Do you know? Is MR का future tense होता है will be, right? As it is a continuous tense, we use ing form. We also use object, right? It means any action which is a future continuous action. ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा या हो रहा होगा, कॉन्टिन्यूअस. ये भी थोड़ा सा दिस सेंटेंस ऑल्सो लिटिल बिट इमेजिनरी, मोर इमेजिनरी. हम बस ऐसे प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये काम हो रहा होगा. फ्यूचर कंटिन्यूअस एक्शन. नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट. अगेन एक तरह का अनुमान कि फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा. एक अनुमान लगा ही लेते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है अभी इतने पर्टिकुलर समय में हो चुका होगा. कुछ ऐसे गेस होते हैं, प्रेडिक्शन होते हैं, या फिर एक टेंटेटिव डेट दे दी जाती है, कहते हैं ना, डेडलाइंस दे दी जाती है फ्यूचर के लिए. बट यू नो दैट डेडलाइंस आर देयर ओनली द इमेजिनरी डेट्स, कि भाई इस तक तो हो ही जाना चाहिए, एक डेट दे देते हैं. सिमिलरली अगर कोई काम एक पर्टिकुलर समय तक खत्म हो चुका होगा, कि कोई डेडलाइन है, डेट है, तो फ्यूचर परफेक्ट भी यूज हो जाता है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अगेन we'll use in perfect tense has have का future. has और have का future जो होता है वो होता है will have, right? और subject के बाद हम helping verb लगाते हैं will have. will have, इसमें will have ही लगता है सबके साथ में. I और we के साथ हम shall have भी लगा सकते हैं, बट जनरली हम will have ही लगाते हैं. एंड फिर हम लगाते हैं verb थर्ड फॉर्म.
और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। रिमेम्बर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विल हैव की, तो शैल हैव हो सकता है, लेकिन हैज कहीं नहीं आता। जनरली यहाँ पर सब जगह थर्ड फॉर्म आती है विल हैव के बाद में। ये रूल है, ये स्ट्रक्चर है। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। right? And future continuous perfect continuous is again the present perfect continuous जैसा ही होता है, बट इसमें क्या लगता है, will have been लग जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब है will have and then been also। उसके बाद क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी लगता है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगता है। फिर हम यहाँ पर सिंस एंड फॉर भी लगा सकते हैं। जनरली यहाँ पे हमने फॉर देखा है, सिंस नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी काम हम ऐसे नहीं बताते हैं कि इस पर्टिकुलर समय से हो रहा है। हम यहाँ पर बताते हैं कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन से हो रहा है। लेकिन अगर कभी आपको लगे कि मैम एग्जैक्ट टाइम आए, तो क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगा सकते हैं। सिंस की जगह पे फ्रॉम लगाते हैं, फिर टाइम लगाते हैं। राइट, लेट्स टेक एग्जाम्पल। ओके, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल विथ आई विल see you tomorrow। I will see you tomorrow। मैं तुमसे कल मिलती हूँ। राइट, यहाँ पे सी का मतलब होता है मीट। जब आप किसी से इस तरह से बोलते हो ना, आई सी यू टुमारो, इसका मतलब है आई मीट यू टुमारो। यहाँ पे देखने से नहीं, मिलने से मतलब है सी का। राइट, ओके। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह एग्जाम की तैयारियां कर रही होगी। नेक्स्ट वीक में उसके एग्जाम है, तो नेक्स्ट वीक में वह एग्जाम की तैयारियां कर रही होगी। शी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम द नेक्स्ट वीक। यहाँ पर इसका मतलब है नेक्स्ट वीक, द हटा देते हैं, नेक्स्ट वीक। राइट, इसका मतलब है नेक्स्ट वीक में उसके एग्जाम है और वह एग्जाम की तैयारियां कर रही होगी। क्योंकि एग्जाम है, तो हम एक ये चीज मान सकते हैं कि हाँ भाई एग्जाम है तो पढ़ ही रही होगी, मतलब उस वक्त वो कर रही होगी, ऐसा मेरा गैस है, मेरा अनुमान है, मेरा प्रिडिक्शन है। राइट, एक एग्जाम्पल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से ले लेते हैं, परफेक्ट से ले लेते हैं। भाई मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, अब मुझे कोई पूछे कि यार तुम कहाँ जा रहे हो, तो बोलेंगे दिल्ली जा रही हूँ। कब तक पहुंच जाओगी दिल्ली, तो मान लीजिए अगर मैं हैदराबाद से दिल्ली जा रही हूँ, तो अगर मैंने 11 o'clock की ट्रेन ली है, तो लगभग मुझे दिल्ली पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है कि मॉर्निंग 6 o'clock हो जाएगा। राइट, तो मैं क्या बोलूंगी, 6 बजे तक दिल्ली पहुंच चुकी होंगी। तो क्या हो जाएगा, आई विल हैव रीच्ड रीच्ड दिल्ली। अब यहाँ पे तक के लिए लगाएंगे बाय मॉर्निंग 6। राइट, अब अगर किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है, तो पहले आप मुझसे पूछ लीजिए, देन आई विल गो फॉर अनदर सेंटेंस। No doubts? All are okay? All understood the concept of this? Hmm? Okay. लास्ट सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अनरियलिस्टिक टेंस होता है, ऐसे कोई बात नहीं करता, कोई इस तरह के सेंटेंस नहीं लिखता है। फिर भी अगर इमेजिन करो, आप किसी कंपनी में, आप किसी स्कूल में बचपन से पढ़ रहे हो। राइट, एंड यू आर इन 11th स्टैंडर्ड। राइट,
और अब आपको कहना है कि मैं मुझे इस स्कूल में 12 साल हो जाएंगे या हो रहे होंगे पढ़ते हुए, है ना। मतलब आप पढ़ रहे हो, आप बचपन से पढ़ रहे हो, और आप 1 साल और आगे पढ़ोगे, और तब तक आपको पढ़ते पढ़ते इस स्कूल में लगभग 12 साल हो रहे होंगे। या आप ये भी कह सकते हो कि भाई अभी हो रहे हैं, और अभी 11 साल हो रहे हैं, और अगले बार अगले साल जो है ना वो 12 साल हो रहे होंगे बाय द नेक्स्ट ईयर। तो क्या बोलेंगे? आई will have been studying in this school for 12 years by next year। मतलब अभी तो 11 साल हो रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर में मुझे पढ़ते पढ़ते 12 साल हो रहे होंगे। राइट। ये है फ्यूचर का वो सेंटेंस जो मैंने आपको टाइम वर्ड लगाने के बाद में आई आई शोड यू कि टाइम अगर लगा दिया है तो सेंटेंस काफी कंप्लीट दिखता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट वीक हटा दूं, मॉर्निंग 6 o'clock हटा दूं, 12 years बाय द नेक्स्ट ईयर हटा दूं, बाय द नेक्स्ट ईयर भी हटा दूं, देन द सेंटेंस बिकम्स इनकम्प्लीट। तब फिर आपको चाहिए वन पर्सन वन सेंटेंस टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। राइट। तो एक कॉम्बिनेशन लेकर देखते हैं, है ना। कॉम्बिनेशन है, एक व्हेन के साथ सेंटेंस बना लेते हैं, या फिर एक सेंटेंस एज सून एज के साथ बना लेते हैं। राइट। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, इसका मतलब होता है जैसे ही। राइट। अब अगर मैं बोलूं कि जैसे ही वह आएगा मैं उसे इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है। ओके। एक रूल और होता है। क्या रूल होता है? एज सुन एज के बाद आप कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं लगाते हो। तो आप क्या लगाते हो? यू नेवर यूज फ्यूचर टेंस। आप लगाते हो इसकी जगह पर प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस लगाते हो? प्रेजेंट सिंपल टेंस। रूल होता है एज सुन एज के बाद में हम लोग कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं लगा सकते। ये जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल को अपने साथ लेते हैं, इनके साथ में हम क्या नहीं लगा सकते? फ्यूचर टेंस, कोई भी फ्यूचर टेंस। तो ये फिर कैसा बन गया? ये अब कॉम्बिनेशन आपका बनेगा फ्यूचर टेंस प्लस प्रेजेंट टेंस। कौन सा प्रेजेंट टेंस बनेगा? दिस प्रेजेंट टेंस विल बी द प्रेजेंट सिंपल टेंस ओनली। सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, बाकी कोई टेंस नहीं होगा। राइट। तो अभी अगर सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस क्या बनेगा? कैन यू ट्रांसलेट इट फॉर मी? कैन somebody ट्राई टू ट्रांसलेट? जैसे ही वह आएगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, या मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी, ऐसा बना लेते हैं। मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। जैसे ही वह आएगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। As soon as he will come, I will एज inform सून him. एज के बाद में विल और शैल नहीं आता, फ्यूचर टेंस नहीं आता, प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। टेल मी। As soon as he come, I will inform. Because ठीक है, वेरी गुड। बस थोड़ा सा करेक्शन है। क्या करेक्शन है? एज सुन एज कम्स एस लगेगा, क्योंकि ही के साथ में प्रेजेंट सिंपल में एस ई एस टेंस आता है। तो अभी हम फ्यूचर के साथ में प्रेजेंट को भी रिवाइज कर लेंगे। प्रेजेंट टेंस के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, जनरली वो फ्यूचर टेंस के साथ में बनते हैं जनरली। वैसे वो खुद के साथ में भी बनाते हैं, पर जनरली वो फ्यूचर टेंस के साथ ही बनते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? सेंटेंस को बनाएंगे एज सुन एज ही कम्स
I will inform. जितने भी लोगों ने आज तक सुना हुआ है as soon as, he will come, I will inform you, that sentence is wrong, right? और कई लोग बोल देते हैं, कई लोग बोलते हैं जिनको इस बारे में पता नहीं होता है, एंड शुरू से यही बोलते आ रहे हैं, nobody करेक्टेड them, तो फिर यही बोलते हैं as soon as. लेकिन जब आप अच्छे स्पीकर्स को सुनते हो जो इंग्लिश के होते हैं, जिनको इंग्लिश समझ में आती है, इंडियन इंग्लिश भी आती है, दे विल नेवर से, आप उनको कभी नहीं सुनोगे as soon as के बाद में will और shall बोलते हो, you will never hear them like that. ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? as soon as he comes, I will inform you. उसके बाद वाले में चलेगा, उसके बाद वाला सेंटेंस में फ्यूचर चलेगा, बट अभी नहीं चलेगा. I'm searching for a right symbol, I'm not getting. ओके चलो बाद में लगा दूंगी. तो कौन सा टेंस लगता है यहाँ पर? जो राइट लगेगा वो है प्रेजेंट सिंपल. तो कॉम्बिनेशन पता है क्या बनता है? कॉम्बिनेशन बनता है as soon as plus present simple, right? Plus और a comma plus future simple, right? तो कैसे बनेगा सेंटेंस? as soon as he comes, comma, I will inform you, है ना? I will inform you, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी, मैं उसे इन्फॉर्म कर दूंगी. ओके, आई विल इन्फॉर्म, सॉरी, हिम. ठीक है, क्लियर? ओके, ठीक. अब आप एक काम करें, गिविंग यू अ होमवर्क. I want you to make sentence with this combination, at least 5 sentences using as soon as. And remember, when you are using as soon as, use present simple after as soon as, and then future simple. What is the meaning of as soon as? जैसे ही. ठीक है? Okay. Whenever you are making future tense, future sentence with as soon as के बाद में हमेशा present simple tense आता है. और present simple tense जो है उसके बाद next sentence बनेगा future का. This is the combination of future simple tense, right? आप ये करके आए. Tomorrow I will go with conditional part of the sentence, right? Conditional part of the sentence. कंडीशन सेंटेंसेस क्या होते हैं? क्योंकि आप ये कॉम्बिनेशन सीख रहे हैं, यू शुड नो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं. दैट इज द पार्ट ऑफ इट, राइट? अब आपको क्या करना है, एक और होमवर्क दे रही हूँ. 1, टू मेक द सेंटेंस 5 सेंटेंस, एटलीस्ट 5 सेंटेंस विद as soon as. Second is you have to choose a topic, any your favorite topic to give the presentation on. कोई भी टॉपिक हो सकता है. it could be any social topic, social, societal. It could be any knowledgeable, informative. It could be any topic. It could be favorite. It could be, my dream, my aim, my goal, my favorite personality, the city I want to visit, the place I want to see, the company I want to get the job in, or anything, any I want to meet this person, any topic, the best day of my life, anything जो आपको लगता है कि मुझे ये टॉपिक सबसे ज्यादा पसंद है, and I will be giving my presentation confidently on this topic. You guys will prepare, and before starting this grammar topic, you guys will give your presentation on your chosen topic. Okay? Okay, ma'am. Okay, to take any topic, any means you are not bound that you should take this particular topic only of this type. Can take anything, random.
जो दिमाग में आ जाए कि I can speak better on this, prepare, speak tomorrow. That is your favorite random topic. If there are vocabulary needed, I would definitely help you and give you the corrections and area of improvement as usual. Fine? Please do it. See you tomorrow on the same time. Bye. Take care and good night. Thank you. I'll share this file and take the sentences. Okay? Okay, ma'am. Okay. Bye. Take care. Good night. Ma'am, bye. Bye.